লোকসভায় গৌরব গগৈকে নিয়ে পাকিস্তান বিতর্ক। পাক মিডিয়ার প্রসঙ্গ তুলে গৌরব গগৈকে নিশানা দিলীপ শইকিয়ার। গৌরব গগৈকে তুপ দাগতে গিয়ে বিরোধীদের প্রতিবাদে থামতে হলো দিলীপ শইকিয়াকে। সারে জাহাঁ সে আচ্ছা পড়েও ঠেকানো গেল না বিক্ষোভ। इकबाल साहब का वो कविता सुना करके खत्म करता हूँ। सारे जहां से अच्छा सुन लो भाइयों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुली है इसी की, यह गुलिस्तान हमारा। পাক মিডিয়া দেশের এক সাংসদকে নিয়ে সংবাদ পরিবেশিত হয়। দেশের সেনা ও প্রধানমন্ত্রী বিষয়ে সমালোচনামূলক মন্তব্য করেন ডেপুটি লিডার। আবার ওনার সেই বক্তব্যের সপক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশ পায় পাকিস্তানে। এমনই মন্তব্য করে জোরহাটের সাংসদ গৌরব গগৈকে লোকসভার অধিবেশনে নিশানা করেন আসাম প্রদেশ বিজেপির সভাপতি তথা দরং উদালগুড়ির সাংসদ দিলীপ শইকিয়া। বিরোধীদের তোপের মুখে পড়ে ডক্টর আল্লামা ইকবালের দেশাত্মবোধক কবিতা সারে জাহাঁ সে আচ্ছার পংক্তি উপস্থাপন করেও মেলেনি রেহাই। গতকাল গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে লোকসভায় ঝড় তুলে শেষে ডক্টর আল্লামা ইকবালের দেশাত্মবোধক গানের পংক্তি পরিবেশন করেও পরিস্থিতি সামলাতে পারেননি দিলীপ শইকিয়া। সারা দেশবাসী যখন পহেলগাম কাণ্ডের জবাব চেয়েছিল, সরকারের পাশে ছিল সমস্ত বিরোধীরা, ঠিক সেই সময় অপারেশন সিঁদুর কেন বন্ধ করা হলো, কার কাছে বা নতি স্বীকার করলো, তড়িঘড়ি সিজফায়ার মেনে নিতে হলো, দেশের কয়টি যুদ্ধ বিমান ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভূপতিত হয়েছে। গৌরব গগৈ এই সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকার পক্ষকে অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন লোকসভার ডেপুটি লিডার গৌরব গগৈ। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে জবাব না মিললেও মিলেছে পাল্টা সমালোচনা। পরোক্ষভাবে একাংশ বিজেপি সাংসদ বুঝিয়ে দেন অপারেশন সিন্দুর কেন বন্ধ করা হয়েছে বা কয়টি সামরিক বিমান দেশ হারিয়েছে, এই সব উত্তর দিতে রাজি নয় সরকার। লোকসভায় গৌরব গগৈ সমালোচনা করতে গিয়ে রীতিমতো ফেঁসে যেতে দেখা যায় অষ্টম প্রদেশ বিজেপির সভাপতি দিলীপ শইকিয়াকে। পাক ইস্যুতে গৌরব গগৈকে পাল্টা আক্রমণে মুখ বন্ধ করানোর কৌশল নিয়ে দিলীপ শইকিয়া নিজের বক্তব্যে তুমুল প্রতিরোধের মুখে পড়েন। বিরোধী সাংসদরা লোকসভার দেওয়ালে নেমে সেখানে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে সরকারের কাছে জবাব চাইলে প্রশ্নের মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। অবিজেপি সাংসদ সদস্যদের হাল্লা চিৎকারে শেষ পর্যন্ত প্রদেশ বিজেপির সভাপতি দিলীপ শইকিয়া ঠিকঠাক বক্তব্য শেষ করতে পারেনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে কোনো কৌশলই বাদ দেননি শইকিয়া। এক পর্যায়ে দেখা যায় গৌরব গগৈর পাক যোগ ইস্যু বাদ দিয়ে অখণ্ড ভারতের জাতীয় কবি, খণ্ডিত পাকিস্তানের জাতীয় কবি ডক্টর আল্লামা ইকবালের লেখা কবিতা সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা এর এক পংক্তি পরিবেশন করে কাজ না হলে পরে নিজের বক্তব্য শেষ করে দিতে দেখা যায় দিলীপ শইকিয়াকে। भारत के हर नागरिक को मैं कहना चाहता हूं, ये भारत अजेय है, ये भारत अपराजय है। भारत को कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और आज का समय है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुशासन का, और हमारे जो सैन्य बल है, तीनों सैन्य बल ने जो बहादुरी दिखाया है इस ऑपरेशन के माध्यम में, मैं उस सैन्य बल को नमन करते हुए, सैल्यूट करते हुए भारत रत्न सुधाकांत आसाम के सुसंतान डॉक्टर भूपेन हजारिका का एक पंक्ति उनके सम्मान में मैं बोलना चाहता हूं। प्रति जवान रक्तरे बिंदु हल साहसर अनंत बिंदु, हे साहसर दुर्जय लहरे जासिले प्रतिज्ञा जयरे। ये जय का प्रतिज्ञा था भारत के सेना का, हर भारतीय का, और हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने विजय भी हासिल किया है। मैडम चेयरपर्सन, हम जानते हैं देश 1947 में आजाद हुआ है, और आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। 1947-48, उसके बाद 1965, उसके बाद 1971, उसके बाद 1999, और अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने सभी में विजय हासिल किया है, लेकिन
जो अपोजिशन बेंच के कुछ हमारे बंधुओं ने कुछ जो लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ उनका जो क्रेडिट लेना चाहते हैं वो क्रेडिट ले, हमारा कुछ उसमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन 1947-48 के लड़ाई में भारत ने कश्मीर के 1/3 जमीन खो दिया है। इसका जवाब ऑपोजिशन कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने इस सदन में भारत ने क्यों 1/3 ऑफ द कश्मीर लैंड खोया, उसका जवाब कांग्रेस के हमारे सांसद लोग इस सदन पर दे सकता है। क्या कांग्रेस इस लड़ाई में, उस लड़ाई में जो भारत ने खोया है उसके लिए दुख व्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए शरीक मांग सकते हैं भारत के जनता के प्रति? कांग्रेस का यह साहस नहीं है। उसके बाद मैडम चेयरपर्सन 65 में वार हुआ, 71 में जो वार हुआ मैडम चेयरपर्सन वो सबसे महत्वपूर्ण है। 71 में जो लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, 71 में बांग्लादेश बना। भारत के सेना, भारत के उस समय के शासक सभी हम उस लड़ाई में जीतने के लिए हमने सब कुछ दांव में लगा दी। हम लड़ाई जीते भी। 90,000 पाक आर्मी ने हमारे पैर के सामने घुटना टेकने को मजबूर हो गया था। लेकिन बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश भारत के लिए, पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष करके आज एक सिर दर्द बन गया मैडम। आज बांग्लादेश 71 के बाद पूरे भारत, विशेष करके पूर्वोत्तर, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार जैसे प्रदेशों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आज वहां के डेमोग्राफी को भारी एक परिवर्तन, एक बहुत बड़ा एक डेमोग्राफिक सेंस हो रहा है। आज उस डेमोग्राफिक सेंस के कारण आज एक के बाद एक जिला, असम के, बंगाल के, बिहार के, आज वहां पर जो मेजॉरिटी है हम लोग, वहां हम लोग माइनॉरिटी बन रहा है। मैडम चेयरपर्सन, बांग्लादेश बना। बांग्लादेश का बनने के बाद भारत को जो नुकसान सहना पड़ रहा है उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। कि कांग्रेस पार्टी के उस समय के शासक, उस समय के शासन अपने वहां के बांग्लादेश माइग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में शामिल करना, उसको राशन कार्ड देना, उसको जमीन का पट्टा देने का कोई पाप किया है, अपराध किया है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। उसका भी जिम्मेदारी कांग्रेस को लेना पड़ेगा। मैडम चेयरपर्सन, मैडम चेयरपर्सन, आज तो एलओपी भी नहीं है, डेप्यूटी एलओपी भी बाहर है। डेप्यूटी एलओपी जब भाषण दे रहा था पाकिस्तान में, मैडम चेयरपर्सन, आज मीडिया में उनका न्यूज बज रहा था। मैडम चेयरपर्सन, पाकिस्तानी मीडिया में, मैं उसका फोटो भी, आप मांगेंगे तो फोटो, उसका पूरा रिकॉर्ड डाटा मैं आपके सामने मैं जमा कर सकता हूं। पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोल रहा है? भारत के संसद का हाल देखिए। भारत के सांसदों ने भारत के जो प्रधानमंत्री, भारत के जो सामरिक जो शक्ति है उसके खिलाफ, उसके विरोध में या उसको नकारने का जो प्रयास आज हमारे ही विरोधी दल के सांसद यह कर रहा है, क्या मैडम चेयरपर्सन ये देश के लिए दुख का विषय नहीं है? ये देश के लिए सोचने का विषय नहीं है? पाकिस्तान के मीडिया में हमारे देश का संसद में आज क्या हो रहा है, संसद का वक्तव्य क्या दे रहा है? आज हमारे डेप्यूटी एलओपी बड़ा भाषण देकर के गया है, लेकिन मैं डेप्यूटी एलओपी को बोलना चाहता हूं, उस डेप्यूटी एलओपी का भी विरोध में असम गवर्नमेंट में स्पेशल टास्क फोर्स एसआईटी का गठन कर चुका है। किस लिए? मैडम चेयरपर्सन, एक डेप्यूटी एलओपी का
उनका जो मैं आज बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि एसआईटी बनाई है इस कारण के लिए। डेप्यूटी एलओपी का जो वाइफ है वो पाकिस्तान का पेरोल में काम कर चुका है। 19 बार 19 टाइम्स डेप्यूटी एलओपी पाकिस्तान गया है मैडम चेयरपर्सन, और यहाँ आकर के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है इनका, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मैं तथ्य के आधार पर बोल सकता हूं मैं मैडम चेयरपर्सन, इस डेप्यूटी एलओपी कांग्रेस पार्टी का आज उनके खिलाफ जो एसआईटी गठन किया असम गवर्नमेंट ने, उसका भी परिणाम आएगा 10 सितंबर को। मैडम साहब हाउस को ऑर्डर में लाइए, ऐसा नहीं चलेगा। वो भाषण झाड़ के चला गया, हम तो उनका सुना पूरा, हमने उनको पूरा सुना। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मैडम हाउस को ऑर्डर में लाइए, पहले हाउस को ऑर्डर में लाइए। ये कोई मैं गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के बारे में बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बोल रहा हूँ मैडम चेयरपर्सन। दिया जाएगा कार्रवाई से। मैडम लोग को मिर्ची लगेगा, मिर्ची जरूर लगेगा। जो सत्य पे है, जो सत्य बोलता है वो उनको सहन नहीं होता है, जो सच है उसको हजम नहीं होता है कांग्रेस पार्टी को। देखिए ये सब विषय जो है मैडम चेयरपर्सन इनको हजम करना है। मैडम चेयरपर्सन मैं फिर से एक बार आप बताइए, आप जब बोल रहे थे हम पूरा सुन रहे थे मैडम चेयरपर्सन, पूरा सुन रहे थे। सुनने का लगत दिखाओ, सुनने का लगत दिखाओ, सत्यों को सुनने का क्षमता दिखाओ। जो सत्य है वो मिटा नहीं सकता है, जो सत्य है हमेशा वो सत्य ही रहता है, उसको मिटा नहीं सकता है। कोर्ट में कोई ऐसा शब्द है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। आपके जमाने में क्या हुआ है, आपको शर्म होना चाहिए। आपका जब पहला सरकार बना तब हमारे 1/3 लैंड कश्मीर के पाकिस्तान के ऑक्युपाइड हो गया, पीयू के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है। आपको शर्म करना चाहिए, क्यों शर्म नहीं आप लोगों को? शर्म करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बैठिए, आप लोग को भी बोलना है, आप बैठिए। ऐसे वेल में आने से प्रोटेस्ट करने से सत्य थक नहीं जाएगा, सत्य ही रहेगा, सत्य हर जगह होगा। ऐसा नहीं होता है मैडम चेयरपर्सन, ये इनका आदत है। देश के खिलाफ वो कुछ यूनिवर्सिटी बने हैं ना, देश के खिलाफ वो यूनिवर्सिटी का कुछ फैन भी है, शब्दों से कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। वहाँ दिखाई देता है इस देश में। प्लीज बैठिए। इसीलिए मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ मैडम चेयरपर्सन, थोड़ा सा हजम कीजिए। हम भी हजम किया है, देश के स्वार्थ में, भारत के हित में कभी कुछ हजम करना भी सीखना चाहिए। मैडम चेयरपर्सन मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डिसाइसिव लीडरशिप है, भारतीय सैन्य बल का जो शक्ति सामर्थ्य है, उसको फिर सैल्यूट करता हूं। और साथ ही में कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन से विनती करता हूं, आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी सुन के अगर आउट करना भी तो कीजिए, कोई इशू नहीं। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो जल्दी भारत का हिस्सा बनेगा, सुन के सीख लो, वो जल्दी बनेगा भारत का हिस्सा। आपको भारत को टुकड़ा करने का आपका मंशा है, उस मंशा को भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार कभी वास्तव में इसको स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास जो है वो भी भारत के साथ विलय होगा, ये पक्का भारतवासियों का संकल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। फिर लास्ट में मैं एक बार इकबाल साहब का वो कविता सुना करके खत्म करता हूँ। सारे जहां से अच्छा सुन लो भाइयों,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुली है इसी की, यह गुलिस्तान हमारा। आप लोग भी हमारे साथ में शामिल हो जाइए, आप लोग भी शामिल हो जाइए। ज्यादा दिन आपको और इधर बैठने का जरूरत नहीं है, अब बहुत साल बैठना पड़ेगा, माननीय 20-25 सदस्य साल हनुमान मिनिमम तो बेनीवाल जी। बैठना ही पड़ेगा। थोड़ा जल्दी आप लोग हमारे तरफ में आ जाइए, तो देश को एक साथ हम आगे बढ़ाने का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हम सब लोग प्रयास। दिलीप भाई कब बन रहे हैं?